જી બિલકુલ, દુશ્મનોના દાંત છાંટા કરવા માટે આઈએનએસ સુરત થઈ ચૂક્યું છે અને વેલકમ સેરેમની અત્યારે હાલ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે આઈએનએસ સુરત મુંબઈથી સીધું સુરત આવી પહોંચ્યું છે, ત્યારે તેને આવકારવા માટે જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ, રાજ્યસભા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા યોજાયેલી વિશિષ્ટ સમારોહમાં આઈએનએસ સુરતને એક યુદ્ધ જહાજને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું હતું. ત્યારે 16 થી 18મી સદી દરમિયાન જે પ્રમાણે સુરત બંદર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે પ્રસિદ્ધ હતું, ત્યારે તે પ્રમાણે લોકોને નિહાળવા માટે અત્યારે હાલ આયોજન કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ નકારી શકાતી નથી. પરંતુ અત્યારે જોઈ શકાય છે આઈએનએસ સુરતને વેલકમ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મુંબઈથી સીધું સુરત પહોંચી ચૂક્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ યુદ્ધ જહાજ કહી શકાય તેને આઈએનએસ સુરત નામ આપ્યું છે. ત્યારે સુરત માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત. અત્યારે હાલ મુખ્ય હથિયારો અને પ્રણાલીની વાત જો કરવામાં આવે તો બ્રહ્મોસ ક્રૂઝ મિસાઇલ, જેની રેન્જ અત્યારે 450 કિલોમીટરથી વધુ છે, એની સાથોસાથ મિડ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ જે વિમાન છે, એની સાથોસાથ ડ્રોન અને હવાઈ મિસાઇલ હુમલાને નિષ્ફળ બનાવવા માટે AK-630 CAI ગન સિસ્ટમ છે એ પણ ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે એન્ટી સબમરીન વોરફેર એની સાથોસાથ રડાર છે એ પણ ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે અદ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ કહી શકાય રહી છે. રાજ્યસભાના સાંસદ જે છે તે ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા અને ખાસ કરીને સુરત કલેક્ટર સૌરભ પારગી સહિતના જે અધિકારીઓ જે છે આવવાના છે અને સ્વાગતનો જે કાર્યક્રમ જે છે કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે રીતના આતંકી હુમલાને લઈને સેનાઓને છૂટ આપવામાં આવી છે તેને લઈને સ્વાગતની તૈયારી જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે, અત્યારે તમામ તૈયારી જે છે તે આરંભી દેવામાં આવી છે અને અત્યારે તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. અને જે આઈએનએસ સુરત જે જહાજ છે મોટું તે અત્યારે પહોંચી ચૂક્યું છે અને અત્યારે કામગીરી જે છે સેલિબ્રેશન કરવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે આતંકી હુમલાને લઈને બેઠક કરવામાં આવી હતી અને બેઠકની અંદર જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આતંકીઓને છૂટ આપવામાં આવી છે, તેને લઈને અત્યારે એક પડકાર કહી શકાય. અને ખાસ કરીને આઈએનએસ સુરત જહાજ જે છે તે સુરત ખાતે પહોંચી ચૂક્યું છે. સાહિદ દત્તા, GSTV સુરત. ચંદન ના લાગે બીજું કઈ કામકાજ છે? તમારા માટે આજુબાજુ આવ્યું ના મોબાઈલ નો અગાડથી લેવાય ને આમાં જ ફરજો. આ પેલી બેગમાં લટકાવો એટલે ઉઠાઈ જશે કાકા. ઉપર નથી આવે 300 આવે ઉપર. ડ્રોન મંગાવો. કાકા આમાં બી આવીને છે. અદભુત.
मुझे दीजिए एक शिप ओके इस लाइन में प्लीज डोंट कम આજે આજે 1 2 3 પર ઓર્ડર છે એક સુરત સુરત અસ્મિતાના કેમેરા ઉપર આ જહાજ જોવા મળી રહ્યું છે અને આ જહાજમાં જે જવાનો ઉપસ્થિત છે બ્લુ ડ્રેસમાં સજ્જ કહી શકાય આ જવાનો આઈએનએસ ઉપર જે રીતે આતંકી હુમલાને લઈને જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે ભારત પાકિસ્તાન ત્યારે ગમે તે સમયે આપણા દેશના સૈનિકોના જવાનો છે મિસાઇલથી અત્યારે આ તમામ જે યુદ્ધ જહાજ છે એ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો મિસાઇલ અત્યારે હાલ જોવા મળી રહી છે અને આ મિસાઇલ જે પ્રમાણે તસવીરો છે તો પણ અત્યારે હાલ અત્યારે જોવા મળી રહી છે આને અવસર કહી શકાય જોઈ શકાય છે બીબી અસ્મિતાના કેમેરા ઉપર આ આઈએનએસ સુરત છે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ આઈએનએસ સુરત દુશ્મનોના દાંત ખાતા કરવા માટે ચેતન ચેતન એક વાર અંદર આ લાગી નહીં જાય ગેંગવે લાગે જો અહીંયાથી બહાર નીકળવાની જગ્યા બનશે ત્યાં સુધી તમે હું વિઝલ લઈ લે આવતા પેલા મિસાઇલ બુદ્ધિ જ આવે ट्रेन हटा हाँ भैया हाँ कहाँ ले जाओ कहाँ लगाएगा सीढ़ी लगा सकते ले जाओ ले जाओ
वीडियो में लगाया था। રાજી છે આપણને કરવા દો તમે તમારા માટે બ્રેકિંગ નાખવા રહે પોલીસના બધા પ્રોટોકોલ તોડ્યા છે તમારા માટે બ્રેકિંગ નાખવા રહે તમે બેને લાઈવ ઠોકો થોડો મોડો ના પડે આટલા દૂર આવે કોણ બસ थोड़ा शिफ्ट हो चालू हो गया कोई आए ना आए भाई और कैप्टन अंकुर बाजू हजीरा पोर्ट के हैं इन सबको पहली और पहली पंक्ति में और कैप्टन शौर्य जी ओ भैया भाई ओ भाई ओ भाई कैप्टन शौर्य ऑन बिहाफ ऑफ INS सूरत की अपने कर्तव्य ध्वनि से तालियों के स्वागत में सूरत शहर में हम उसका स्वागत सूरत के भाई में उसका स्वागत कर रहे हैं। सूरत के लिए बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है सिटी और अरे ओ अपने उत्साह उमंग और ऊर्जा के साथ स्वागत करें। जो कभी यहाँ 84 देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए और यहाँ जो शीप बनती थी उसकी याद दिलाता है। INS सूरत का शिखर एम्ब्लेम है उसके ऊपर गुजरात की पहचान शेर। सर आज आईएनएस सूरत का स्वागत किया गया है, किस तरह से स्वागत किया, क्यों यहाँ पे सूरत में लाया गया, क्या जानकारी आपके पास? नमस्ते। INS सूरत जो आज यहाँ सूरत में पधारे हैं और हम सब लोग ये INS सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं ये धूप में, क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा INS जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि INS विक्रांत है, मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा INS सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये INS युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। तो मैं पूरा सूरत का जो अपना लोग है, सूरत नागरिक के तरह से मैं बहुत बहुत नेवी को धन्यवाद देता हूँ और अपना INS सूरत को आज वो सूरत में पधारे उनके लिए उनको और सब उनके साथ जो युद्ध सैनिक है सबको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। देखिए जी, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की माहौल है, इस बीच में INS सूरत का सूरत में आना क्या कहता है? ये कहने का यही है हमारा कि भाई हम कहाँ भी है हम सक्षम हैं। ये नेवी में अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो भारत किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं कि वो जहाँ वहां जाके उनकी 5 जात में खड़ा हुआ, हम भारत में कहाँ भी खड़ा है, मगर हम
वहां लोकल से कहां से भी उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लीडर वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, भारत को लगातार वो लोग देख लेने की बात कर रहे हैं, उनकी नदी बहा लेने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन नेताओं? नहीं, उसमें क्या है, अपना गुजराती में एक कहावत है कि जो बहुत बोलता है उसके कुछ नहीं होता है, काम करना होता है, वो भारत कर सकेगा, भारत करेगा। अभी ये जो INS सूरत है, इसकी क्या खासियत है और किस तरीके से ये वर्किंग करेगा, क्या ये उनके लिए थोड़ा मैं साहिब से बताऊं कि आपको बता दे कि ये स्पेशल क्या करेगा, ये खासियत क्या है, ये सब आप बताइए प्लीज। आप आगे आइए। आप आगे आइए, हम बस। मेरे नाम और डेजिग्नेशन बताइए। तो मैं कैप्टन संदीप हूं, कमान अधिकारी हूं भारतीय नौसेना पोत सूरत का। और आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज है, और मैं कहूंगा बेस्ट जहाज है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूं। तो जैसे आप सूरत में सूरतवासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज में। और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज पे आए। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूं उनकी। एंड बहुत बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए। खासियत क्या है, थोड़ा सा ये जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है। चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। सर, बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि INS सूरत जहाज में आया है, सूरत एट सूरत। और बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज को खुला रखें ताकि वो आके देखें। और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था, पहले जो हमारे जहाज बनते थे वो यहाँ से बनते थे। सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी। और आज के दौर में जो सूरत है, इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज अपने में रखें। और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज, क्लीन शिप। कितने लोग को ये लेके चल सकते हैं और कितनी दूरी तक मिसाइल? और तकरीबन 300 लोग के साथ हम जाते हैं। दैट हमारा वो क्रू कॉम्प्लीमेंट है। बट जब हमारे पास एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हम फ्लैग शिप भी हैं, जब हमारे कमान अधिकारी हैं जो झंडा अधिकारी पश्चिमी बेड़े के, वो भी हमारे ऊपर आते हैं, तो 50 के करीब लोग और बढ़ जाते हैं। और मिसाइल्स की बहुत ज्यादा रेंज है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, इतना बोलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है। और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। सर, ये किस तरीके से वर्किंग करेगा और क्या इसकी क्या खासियत है, कैसे? तो युद्ध पोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। उसके बाद से जो वेपन कॉम्पोनेंट है, जो सेंसर्स हैं उसके, और जो मशीनरी है, और बाकी जो हैबिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब चीजों को मिला के तकरीबन 75% का जो कंटेंट है वो भारतीय है। तो सबसे बड़ी बात है। दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है, जितना भी संसाधन होना चाहिए वो है, और इसका रेंज अनलिमिटेड है।
समुद्र में जाके हमें फ्यूल आता रहता है और यहाँ से जहाँ भी लेके जाना है जा सकते।